Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our today's class. You must be remembering that previously we were discussing the business organizations in the private sector. And in that, we studied different legal structures of the businesses, proprietorship or the sole trader. Then we did partnerships. Then we did private limited companies, and then we did public limited company, and then we saw what is a holding company. And today we are moving on. We'll see what is a cooperative. So a cooperative business. Cooperative business are owned and run by and for their members. Means they are both owned and run by their members, whether they are customers or employees or the residents. Now, all the members of these cooperatives have equal voting rights. So, it is very much clear that the cooperative is a democracy. Members such as farmers or freelancers, tenants or taxi drivers can often do better by working together. So, what does it mean? It means that when cooperatives are formed by the members and they are working for themselves, so they work better as compared to the other organizations. As the name signifies that cooperatives are the one in which all the members cooperate with one another and do the business. There are different types of cooperatives like consumer cooperatives, where a business organization where it is run and owned jointly by the members who have equal voting rights. Right? These are basically the consumer cooperatives. Then comes the worker cooperatives. Worker cooperative is one which is owned by the employees. Now, when it is owned by the employees, they contribute to the production and they share the profits as well because they are the members of that organization. And the working of that organization will naturally be better than the other organization because they are working to earn the profit for themselves. So workers cooperatives. Then comes the retail cooperatives. These happen when independent retailers join together. They form a cooperative. They form a cooperative business. So a group of independent stores may come together and operate under one brand name. Right? मतलब ये कि एक रिटेलर स्टोर्स हैं, डिफरेंट रिटेलर स्टोर्स हैं और उन्होंने मिलके एक कोऑपरेटिव बना लिया और उसका एक ब्रांड नेम रख दिया. अब उस ब्रांड नेम के तहत वो सारे का सारा बिजनेस रन हो रहा होगा. नीचे उसके अलग-अलग रिटेल कोऑपरेटिव्स हैं, रिटेल बिजनेसेस हैं, लेकिन अब वो एक कोऑपरेटिव बिजनेस बन गया जो एक ब्रांड नेम के साथ चलेगा. इसका मतलब क्या कि दे कैन गेट बेटर डील्स. बेटर डील्स कैसे आ जाएंगी कि सप्लायर से वो बल्क में परचेज कर लेंगे, उनकी डिस्काउंट्स ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी मार्केटिंग कॉस्ट शेयर हो जाएगी और ये सारा कुछ करके वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे. इसको इसलिए कहते हैं रिटेल कोऑपरेटिव्स. देन कम्युनिटी कोऑपरेटिव्स. Now these are owned by members of a community to provide a local service such as post office. सिंपल एग्जांपल है. जैसे आप इसको भी कह सकते हैं ये डिफरेंट जो आपकी रिहायशी स्कीम्स बनती हैं वो कोऑपरेटिव्स अक्सर कोऑपरेटिव्स होती हैं. कोऑपरेटिव्स क्यों होती हैं? क्योंकि उसी कम्युनिटी के मेंबर्स मिलके उसको चला रहे होते हैं और लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लाइक जैसे एग्जांपल मैंने दी कि पोस्टल सर्विसेज दे दी, कोई क्लीनिंग सर्विसेज दे दी, कोई वाटर सप्लाई की सर्विसेज दे दी. तो ये सारी की सारी सर्विसेज चलती हैं फिर कम्युनिटी कोऑपरेटिव्स में.
इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। मतलब सियालकोट में तो कोऑपरेटिव्स कम हैं, लाहौर में बहुत सी कोऑपरेटिव हाउसेज सोसाइटी पाई जाती हैं, तो वो उसकी यही है कि वो मेंबर्स मिलके उसको चलाते हैं। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट type of business, that is franchise. Franchise is an agreement where a business franchisor sells the rights to other business franchisee, यानी जो सेल करेगा वो फ्रेंचाइजर होगा, जो परचेज करेगा वो फ्रेंचाइजी होगा। रिमेंबर, allowing them to sell the products or use the company name, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कि आप प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, उनका ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वो बिजनेस जो सेल करेगा अपने राइट्स उसको कहेंगे फ्रेंचाइजर, और जो परचेज करेगा उसको कहेंगे फ्रेंचाइजी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजीज क्या हैं? डीलर फ्रेंचाइजीज होती हैं और ब्रांड फ्रेंचाइजीज होती हैं। डीलर फ्रेंचाइजीज की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हेन यू गो ऑन द डिस्का सियालकोट रोड तो आपको सुजुकी के डीलर ऑफिसेज नजर आएंगे, आपको किया के नजर आएंगे, आपको टोयोटा के नजर आएंगे। व्हाट आर दीज आर डीलर फ्रेंचाइजीज। यानी मेन बिजनेस कहाँ पे है? लाइक अगर टोयोटा इंडस मोटर्स की बात करें तो कराची में उनका मेन प्रोडक्शन है और मेन जो सेंट्रल ऑफिस है वो वहीं पे है। और अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो टोयोटा इंडस मोटर्स भी जो है ये एक आप कह लें सब्सिडरी है उसकी, जो टोयोटा जापान मोटर्स है। तो आगे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीलर फ्रेंचाइजीज दे दी मुख्तलिफ शहरों के लिए ताकि वो वहां पे ऑपरेट कर सकें और उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और उनके कंपनी नेम को यूज कर सकें। तो दीज आर द डीलर फ्रेंचाइजेस। ब्रांड फ्रेंचाइजेस बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आपको पता है। आप ये जो है मैकडोनल्ड्स ले लें, आप केएफसी ले लें, आप पिज्जा हट ले लें, आप मतलब डोमिनोज ले लें, कोई भी ले लें। व्हाट आर दीज आर ब्रांड फ्रेंचाइजेस। ये सारे के सारे ब्रांड वहां पे बैठे अपने अपने सेंट्रल ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उनके बिहाफ पे उनके जो फ्रेंचाइजीज हैं वो बिजनेस कर रहे हैं और उनका नाम जो है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जो है वो चल रहा है। Now, what are the advantages? Advantages to franchisor, क्या फायदा है इनको, क्यों इस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं? Using specialist skills of franchisee. देखिए फ्रेंचाइजर फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात कर लें, भाई मैकडोनल्ड्स क्यों वहां से निकल के पाकिस्तान में आ गया? ठीक है, उनको क्या फायदा था? उनको फायदा ये था कि एक तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे नाम हो जाता और उनको खुद कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनके स्किल्स को यूज किया और अपना ब्रांड नेम उनको दे दी कि भाई आपको इजाजत है कि हमारा ब्रांड नेम आप यूज कर लें। तो हुआ क्या उनको फायदा कि उनका ब्रांड नेम ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया। और मजीद ये कि उनकी जो रिस्क और अनसर्टेनिटी थी, जब आप खुद किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपका रिस्क जो है काफी ज्यादा होता है, आप अनसर्टेन होते हो बिकॉज यू डोंट नो द मार्केट, यू डोंट नो द टेस्ट ऑफ द पीपल, यू डोंट नो द डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो क्या है, आप अनसर्टेन हो, आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो जब आप खुद मूव नहीं कर रहे लेकिन वहीं पे मौजूद किसी बिजनेस को अपने फ्रेंचाइजिंग राइट्स दे रहे हो कि वो आपके ब्रांड नेम को यूज कर ले, वो आपकी प्रोडक्ट्स को वहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं और आप उस अनसर्टेन मार्केट में कुछ सर्टेनिटी लेके आ रहे हैं, राइट? अब इसमें एक और फायदा जो बहुत ज्यादा होता है फ्रेंचाइजर को कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज दे हैव, उनको खुद अपना कुछ नहीं लगाना पड़ा। कौन सारा का सारा रेवेन्यू लेके आ रहा है? वो फ्रेंचाइजी जो कि उनसे वो राइट्स परचेज कर रहा है। तो उनका तो अपना कोई खर्च नहीं हुआ, कोई खास नहीं हुआ, बल्कि ना होने के बराबर सारे का सारा जो रेवेन्यू है वो तो फ्रेंचाइजी ने लगाया। और एक बहुत बड़ा फायदा जो होगा फ्रेंचाइजर को वो ये होगा कि उसकी मार्केट बढ़ जाएगी। अब आप देखें, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको ये मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा,
आपको KFC मिल जाएगा, आपको पिज्जा हट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ उनका कि वहीं बैठे बैठे उनकी मार्केट जो है वो पूरी वर्ल्ड ओवर फैल गई। और मजे की बात ये कि फिर हुआ क्या कि मैकडॉनल्ड्स अगर आया है, अब मैकडॉनल्ड्स तो बेसिकली एक एक सिंपल बर्गर था। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये मैकडॉनल्ड्स बनाया गया था मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने। तो उनका नजरिया क्या था कि वो लोग जो गरीब हैं वहां के हिसाब से, मेहनत मजदूरी करते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आउट ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल कहीं जाके वो कुछ खा पी सकें और कोई महंगी चीज खा सकें, तो उन्होंने ये बर्गर्स इंट्रोड्यूस करवाए जो सस्ते थे, $1 बर्गर। और भाई ये आप खरीदें और चलते फिरते खा के साथ साथ अपना काम करते रहें। लेकिन हुआ क्या कि वो जब ये इस तरफ आए, यानी मार्केट इंक्रीज करने की तरफ आए, तो पूरी दुनिया में फैल गया। और हर जगह पे आप देखें कि मैकडॉनल्ड्स की रिक्वायरमेंट, मैकडॉनल्ड्स के टेस्ट वो अलग अलग ही मिलेंगे। मतलब मैकडॉनल्ड्स में चपली कबाब बर्गर आपको पाकिस्तान में मिलेगा शायद, आपको कहीं नहीं। आप सऊदी अरब में चले जाएंगे तो मैकडॉनल्ड्स का वहां पर चपली कबाब बर्गर नहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने क्या किया कि लोकल टेस्ट को भी अडॉप्ट कर लिया। अब मार्केट तो इंक्रीज हो गई, उसके साथ साथ क्या हुआ कि लोकल जो लोगों के टेस्ट थे उनको भी अडॉप्ट कर लिया। ओके, देन ये फ्रेंचाइजी जो होता है, इनको क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में जाते हैं? वो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक रिकग्नाइज्ड कंपनी की वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। कि मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स हैं, तो लोगों को उनका पता है। सिर्फ फायदा क्या होगा कि पहले अगर वो किसी और मार्केट से उसको टैप करते थे, तो अब उनकी अपनी मार्केट में अवेलेबल होगी। अब इसमें जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है या जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, या मतलब उनको उनको ये बताना कि कैसे काम करना है, एनवायरनमेंट कैसे होने चाहिए, सब की सब ये कॉस्ट जो है ये बेयर करता है फ्रेंचाइजर। तो इसकी ये वाली कॉस्ट कम हो जाती है। सेटअप कॉस्ट जो है वो फ्रेंचाइजी की ही रहती है, राइट? और फ्रेंचाइजर दे माइट एडवर्टाइज एंड प्रमोट द प्रोडक्ट्स नेशनली। वो पूरे पूरे मतलब मुल्क के लिए भी वो उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो ये फायदे मिलते हैं फ्रेंचाइजर को और फ्रेंचाइजी को। ओके, देन कम्स द जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या है? ये रिमेंबर कि ये मर्जर नहीं है। रिमेंबर, आपने ये याद रखना है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं मर्जर्स को और जॉइंट वेंचर्स को सेम, बट दे कैन लीड टू मर्जर्स। रिमेंबर, जॉइंट वेंचर्स से मर्जर्स हो सकता है, लेकिन ये मर्जर्स नहीं होते। जॉइंट वेंचर्स क्या है? आप सिंपली देखें कि दो डिफरेंट लोग हैं वो अपने स्किल्स को कंबाइन करके कोई काम कर लेते हैं, तो उसको हम जॉइंट वेंचर कहेंगे। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो दोनों मर्ज हो गए हैं, का मतलब यही है कि उन्होंने अपने स्किल्स को कंबाइन कर लिया है। रीजन क्या होती है जॉइंट वेंचर्स की, क्यों वो जॉइंट वेंचर कर लेते हैं? बहुत बड़ी रीजन कि उनकी कॉस्ट्स और उनके रिस्क जो हैं वो नए बिजनेस वेंचर में जिनको मिलके वो एस्टैब्लिश करेंगे वो शेयर हो जाएंगे, राइट? और ये उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आपकी नई कोई प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो और उसमें मेजर जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। और इस वजह से वहां पे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को किया जाता है कि कॉस्ट को शेयर किया जाए, रिस्क को शेयर किया जाए। अब नेचुरली डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट उनके वीकनेसेस हो सकती हैं। अब वो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को और एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करते हैं इस तरह से कि वो बेहतर तरीके से फिट हो जाएं और बेहतर तरीके से जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको कंबाइन करके अपने टारगेट्स को अचीव किया जाए। So they might have their major market in different countries, and they could exploit these with the new product more effectively than if they both decided to go it alone. ये आप इसकी एग्जांपल ऐसे ऐसे मतलब नजर आ रही होंगी आपको लिखी हुई भी कि गूगल और नासा ने जो गूगल अर्थ डेवलप किया, तो ये दोनों ने इकट्ठे डेवलप किया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गूगल और नासा मर्ज हो गए, नहीं। गूगल अपनी जगह पे है,
नासा अपनी जगह पे है, दोनों अपने अपने इदारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मिल के गूगल अर्थ के नाम से जॉइंट वेंचर किया और गूगल अर्थ डेवलप की। इसी तरह सोनी कॉर्पोरेशन और एरिक्सन, अब दोनों ने जब कंबाइन किया, अपने एक जॉइंट वेंचर बनाया, तो उसका नाम रखा सोनी एरिक्सन। अब क्या उसमें एरिक्सन की जो कैपेबिलिटीज थी वो और सोनी की जो कैपेबिलिटीज थी, दोनों को कंबाइन हुई और एक बेहतर आपको मोबाइल डिवाइसेस मिलना शुरू हो गई। इसी तरह BMW और टोयोटा, इन्होंने दोनों ने जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं एंड दे आर डेवलपिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स और लाइट वेट मटीरियल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके के गाड़ियां लाइट वेट हो जाएं और ज्यादा मजबूत हो जाएं। इवन दे आर वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिक कार्स एज वेल। तो ये क्या है, ये उनके जॉइंट वेंचर्स हैं कि जो उनके डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं उनको वो कंबाइन करके तो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ या प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जॉइंट वेंचर्स के? फर्स्ट इज द एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी शेयर्ड रिसोर्सेज विदाउट एन एक्सेसिव आउटले ऑफ कैपिटल। अब देखें ना, दोनों के रिसोर्सेज, जैसे हमने बात की गूगल और नासा की, तो गूगल और नासा ने अपने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, यानी शेयर कर लिया उन्होंने। अब उनका कोई बहुत बड़ा कैपिटल तो उसमें इन्वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन दोनों के शेयर्स जो हैं दोनों ने मिलके रिसोर्सेज को यूज कर लिया। और एक और फायदा क्या होता है, एक्सपेंशन इनटू द न्यू मार्केट्स, allowing for relatively low risk scalable business growth, right? रिस्क कम हो गया और बिजनेस ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई। स्केलेबल का मतलब ये क्या कि ट्रेमेंडस ग्रोथ मिल गई उनको इस जॉइंट वेंचर की वजह से। और ये जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं, ये दीज आर हाईली फ्लेक्सिबल, मींस दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द मार्केट वेरी क्विकली। There is no need to form a new business entity to create the ventures collaborative product, right? अब ये भी जरूरी नहीं है, जॉइंट वेंचर तो हो गया, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को इकट्ठे कर रहे हैं और नई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं, जरूरी नहीं कोई एक नई बिजनेस एंटिटी भी वो सेटअप करें। की जा सकती है, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, राइट? हम आगे चल के ये भी देखेंगे, जैसे कैडबरीज और श्वेप्स का एक, लेकिन उसको हम मर्जर कहेंगे, उसको ये हम आगे चल के इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द इनिशियल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये जो भी जॉइंट वेंचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ईच बिजनेस रिटेन्स इट्स यूनिक आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। अब ये नहीं कि जॉइंट वेंचर जब खत्म हो गया, जब उनका काम कंप्लीट हो गया, तो वो बिजनेसेस ही खत्म हो गए, नहीं, वो जॉइंट वेंचर खत्म होगा, जो इनिशियल बिजनेसेस हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। जैसे अगर हम बात फिर वही करें, गूगल है तो गूगल अपनी जगह पे एज अ गूगल काम कर रहा है, अगर नासा है तो नासा एज नासा काम कर रहा है, और इन दोनों ने मिलकर गूगल अर्थ डेवलप कर लिया हुआ है, वो गूगल अर्थ अपनी जगह पे चल रहा है हर जगह पे। तो ये इनका फायदा होता है। ओके, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है जी? Engaging in a joint venture may lead to limit opportunities to interact with other organizations, right? आपकी इंटरेक्शन कम हो जाती है। जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेंट्स में फेस इंक्रीज्ड लायबिलिटी, ये तो एक सीधी सी बात है, क्योंकि अब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हो और जॉइंट वेंचर के लिए भी काम कर रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मोस्ट बिजनेसेस एंटरिंग जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स आर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, small businesses, each participant is equally responsible for legal claims arising from the joint venture. तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। Now choose the partners carefully or this will lead to the risk of dragging down the quality of your own company. हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि आप जब जॉइंट